ڈاکٹر صاحب آپ بات کریے, سن رہے ہیں ہم سب آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آل پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی طرف سے اور خاص طور پر پارٹی کے قائد سید پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آج کی اس تقریب میں موجود تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور وعلیکم السلام. اپنے قائد اور صدر آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں پر پارٹی کی مرکزی قیادت نے اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو ذمہ داریاں سونپی وہ ان کو آسان طریقے سے سر انجام دیں گے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی کام میں اپنے مفاد کو پارٹی کے مفاد پر ترجیح نہیں دیں گے. ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب یونائیٹڈ کنگڈم کی جو پہلی تنظیم بنی تھی اس سے پہلے پرویز مشرف زندہ باد. پرویز مشرف زندہ باد. سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے پاکستان. ڈاکٹر امجد زندہ باد. ڈاکٹر امجد زندہ باد. پارٹی کے قائد سید پرویز مشرف صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے یونائیٹڈ کنگڈم کے اندر جو تنظیم نے مختلف پروگرام کیے یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی اس سے وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھے اور ان کی یہ فیلنگ ہے اور ان کو یہ گلہ ہے یا شکوہ ہے کہ پارٹی کے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا گیا. تو اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی قیادت جن میں ڈاکٹر محمد امجد, احمد رضا قصوری, جنرل راشد قریشی صاحب کے مشورے سے ابھی نئی تنظیم کا فیصلہ کیا اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ابھی جو نوٹیفکیشن ہوئی ہیں وہ پرویز مشرف صاحب نے دوستوں سے صلاح مشورے کے بعد خود اس کا فیصلہ صادر کیا اور سیکرٹری جنرل یعنی مجھے یہ کہا گیا کہ یہ نوٹیفکیشن میں کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں پر آپ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں جو عہدیداران جن کو نامزد کیا گیا ہے جن میں الطاف شاہد صاحب ہیں, آصف شہزاد صاحب ہیں, افضال صدیقی صاحب ہیں, سعید بھٹی صاحب ہیں اور محمد علی صاحب ہیں یا دوسرے ہمارے جو اصحاب مختلف شہروں میں ہیں ان تمام لوگوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں پرویز مشرف زندہ باد. پرویز مشرف زندہ باد. تمام لوگ جو کہ مختلف گروپس میں بٹے ہوئے تھے اب وہ ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کے اکٹھے ہونے پر جن لوگوں نے اس میں ایفرٹس کیے ہیں یا ایک اہم رول پلے کیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کو سرحد تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کہنے پر یا مشورے سے تمام دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. اور آپ کو جو پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا گروپ یا کسی تنظیم کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے عہدیداران یا اس کے جو کارکن ہیں ان کے اندر اتحاد, یکجہتی اور بھائی چارہ نہ ہو. اگر ان کے درمیان میں اختلافات ہوں یا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر جو پارٹی کا مفاد ہے وہ مجروح ہوتا ہے اور جو پارٹی کا ورک ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں کہ پارٹی کے صدر سید پرویز مشرف صاحب, سیکرٹری جنرل, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف کوآرڈینیٹر تمام لوگوں پر آپ پر اس وقت بھرپور اعتماد ہے اور آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ پورے یونائیٹڈ کنگڈم کے اندر آل پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم کو پرویز مشرف زندہ باد. پرویز مشرف زندہ باد. سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے پاکستان. ڈاکٹر امجد زندہ باد. ڈاکٹر امجد زندہ باد. بریز کولا زندہ باد. محسن نقوی زندہ باد. پاکستان زندہ باد.
अगर यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, उसको किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो वहां पर, तो उसकी मदद करना हमारे पार्टी अहदेदारों की जिम्मेदारी है। उनके किसी भी किस्म का काम हो, क्योंकि देखिए अगर पार्टी के कायद या पार्टी के अहदेदार अगर अपने साथी वर्करों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके काम नहीं आएंगे, तो वो फिर पार्टी के लिए खातिर काम कारकुन अधिकार नहीं दे सकते। इसके अलावा मैं ये भी अर्ज करूँ कि सैयद परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त कराची में है और उनकी सेहत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको आर्गन तलब भी है, उनके घुटने में भी तकलीफ है और उनके रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ है। ये 3 मुख्तलिफ इस वक्त बीमारियां हैं जिनको हमारे कायद फेस कर रहे हैं। और इस मुश्किल तरीन वक्त में जबकि उनको तकरीबन कोई 8 महीने से ज्यादा उनको पाबंदी हिरासत रखा गया, उसके बाद 4 मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात में उनको उलझाया गया। ये मुकदमात सियासी नौयत के थे, छोटे मुकदमात हैं, और फिर भी हमारे कायद परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़े हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, वल्लम के साथ उन्होंने इसको फेस किया। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, वो किसी की धमकी में नहीं आए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा इस्ताद दहशती गर्दी की इस्लामाबाद की अदालत, रावलपिंडी की अदालत में वो खुद बलफ़ नफीस पेश हुए। यहाँ तक कि वो गिरफ्तारी के लिए खुद चलकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में गए, जहाँ उन्होंने अपने आप को उनके हवाले किया। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे कायद का हौसला है, हिम्मत है और जुर्रत का मुजाहिरा है कि वो भागे नहीं। उन्होंने कहा कि ये मुकदमात को मैं फेस करूंगा। मैं अगर पाकिस्तान आया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम मुकदमात जो इल्जामात हैं या मुकदमात बनाए गए हैं, उनमें मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूँ और उसके बाद एक आजाद शहरी की तरह मैं जब चाहूँ पाकिस्तान जाऊँ और वापस आऊँ। लेकिन हमारे साहब शायद घर के भागकर दूसरे मुल्क चले गए, और लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि जब 23 मार्च को लास्ट ईयर वो पाकिस्तान आए तो ये सोच कर आए, ये फैसला करके आए थे कि मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ पे अदालतें मेरी मुंतजिर हैं, जहाँ पे मेरे मुखालफीन मुंतजिर हैं, जहाँ तालिबान उनके मुंतजिर हैं, जहाँ अपोजिशन की जमातें उनकी मुंतजिर हैं कि हम बदला लें। लेकिन फिर भी वो एक लीडर, दिमाग और जुर्रतमंद लीडर परवेज मुशर्रफ जिसके हम साथी हैं, वो पाकिस्तान में आए, वो तमाम मुकदमा परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद। तो ये बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है कि जब उन्होंने 4 क्रिमिनल नौयत के केसेस को अदालतों में फेस किया, उसके बावजूद ये जो हमारी हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के अंदर फिर उन्होंने स्पेशल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, और वो ये समझते थे कि इसमें भी शायद मुशर्रफ साहब हाजिर नहीं होंगे, तो वो उस अदालत में भी हाजिर हुए। उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि आज ने जो आइन शिकनी की है ये गद्दारी के मुताबिक है, इसलिए आपको सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मैंने ये इक़दाम पाकिस्तान और उसकी अवाम की बेहतरी के लिए उस वक्त की जरूरत के मुताबिक ये कदम उठाया। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ऑल द कोर कमांडर्स एंड ऑल द पीपल फ्रॉम द ऑफिशियल्स फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, दे ऑल वर पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। took the decision together। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये आइन शिकनी है, गद्दारी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे मशावरत के बाद ये फैसला किया, और उस वक्त मुल्क को इसकी जरूरत थी। अगर आपने मुकदमा चलाना है तो फिर शपथ चलाएं और हम उसको फेस करेंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इतने सारे लोग जो इस इक़दाम में मलूम थे, सबको छोड़ दिया गया। तकरीबन कोई 495 लोग ये बनते हैं और उनकी लिस्ट भी हमने पेश की है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बावजूद ये जो नवाज
लीग के जो अकाबरीन है वो सिर्फ और सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब को सजा देना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली जब हमने अप्लाई किया ECR से नाम निकालने के लिए तो हुकूमत ने ये कहकर अभी इनकार कर दिया कि ये पाकिस्तान के आवाम के वसीतर मफाद में नहीं है। और ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल नोयत के मुकदमात हैं। और बाहर यहाँ तक उसके अंदर ये भी लिखा गया कि परवेज मुशर्रफ को इन मुकदमात में मौत की सजा भी हो सकती है। इसलिए परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद। मेरे साथियों, मेरे यूनाइटेड किंगडम के भाइयों बहनों और साथियों, ये कितने अफसोस की बात है कि ये हुकूमत परवेज मुशर्रफ के मुतालिक साहब के मुतालिक क्या बात कहती है कि उनको मौत की सजा हो सकती है। और भाई किस चीज की सजा हो सकती है? ये परवेज मुशर्रफ साहब वो लीडर है जिसने पाकिस्तान को तरक्की दी, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया, पाकिस्तानी अवाम की इज्जत को बहाल किया, सबल पासपोर्ट की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट बनाई, जिसने पाकिस्तान के कौमी खजाने में बढ़ा, जिसने 15-16 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में रिजर्व डाल दिए। और वो परवेज मुशर्रफ जिसके दौर में टेक्सटाइल और इंडस्ट्री दूसरी 400% बढ़ी, उसके दौर में सीमेंट प्लांट लगे, उसके दौर में पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा, उसके दौर में 2 डैम बने, उसके दौर में नहरें बनी, उसके दौर में ये बिजली और गैस की इस कदर बदतरीन लोड शेडिंग नहीं होती थी, उसके दौर में आटा, चीनी, घी, तमाम जरूरियात की चीजें आसानी दस्तियाब थी। वो परवेज मुशर्रफ जिसके दौर में डॉलर 60 रुपए से ऊपर कभी नहीं गया था, वो परवेज मुशर्रफ साहब जिसके दौर में टेलीकम्युनिकेशन का जाल बिछा, वो परवेज मुशर्रफ जिसके दौर में पूरी दुनिया ने अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बूम आया। वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान का खजाना भरा हुआ था, वो वक्त था जब IMF ने कहा कि हमसे किस्त लो। परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने कहा कि भाई अपना पैसा वापस ले जाओ, हम इस कश्मीर को तोड़ते हैं। और क्या इस परवेज मुशर्रफ पर आप हत्यारी का मुकदमा चलाते हो? क्या इस परवेज मुशर्रफ को आप मौत की सजा देना चाहते हो? हमारी चाहिए नवाज शरीफ की हुकूमत को परवेज मुशर्रफ सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। तो मेरे साथियों, आप लोग होते रहो, डर जाओ और जहाँ जहाँ जिस वक्त आप इंशाल्लाह कर सकते हैं, कोई रैली निकाल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबरों के आगे, या आप फौरन मीडिया के आगे, या ब्रिटिश हुकूमत के सामने, जहाँ कहीं आप इजहार कर सकते हो कि ये आपके कायद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करें, इनको रियलाइज करें कि वो लीडर जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम पैदा किया, इस्लाम का नाम पैदा किया, पूरे इस्लामी उम्मत का नाम पैदा किया, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश की, उनको ताकत दी। आज वो लीडर, आज उस लीडर को इन बैनुल-अक़वामी जो हुकूमतें हैं, जो फोर्सेज हैं, उनकी जरूरत है कि वो इस मुल्क की हुकूमत को प्रेशराइज करे कि आप नाइंसाफी मत करो, आप सिंगल आउट करके एक आदमी को सजा मत दो। इंसाफ करना है तो इंसाफ करो, और इंसाफ वो होता है जो नजर आए, वो इंसाफ नहीं होता जो आप अपने ईमानों में बैठ कर फैसला करते हैं और रात को फैसला करते हैं और सुबह उसका फैसला आप अदलिया के जरिए लोगों पर थोप करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये अदलिया कहती तो आजाद है, लेकिन ये आजाद नहीं है। ये स्पेशल कोर्ट वो कोर्ट है जो चौधरी इफ्तिखार ने बनाई। आप सब इस चीज पे गवाह है कि पूरे बरतानिया में उसका बेटा क्या कारोबारी करता रहा, कितना पैसा खर्च करता रहा, कहाँ से उसने माल लूटा, लेकिन उस जस्टिस इफ्तिखार ने उसको कुछ नहीं कहा। और फिर वही जस्टिस इफ्तिखार जिसने 1999 में हुकूमत जब बदली तो उसको उन्होंने स्टैम्प किया कि ये जायज इक़दाम था, उसने 2 साल के लिए आईन में तरमीम का भी इख्तियार दे दिया, इसलिए कि उस वक्त वो बेनिफिशियरी
था। अब 2 नवंबर 2007 में वो बेनिफिशियरी नहीं था, इसलिए उसने कहा कि ये बगावत है। तो एक दफा कहें कि ये असली काम है और दूसरी दफा कहें बगावत है, और अपने फैसलों में तजाद मत करो। और वो जो कौम का लीडर है, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, माशी हालत बहुत बुरी है, प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, डॉलर की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, रोटी महंगी हो गई है, दूध नहीं मिलता बच्चों को। आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त में 25-30% ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके पाँव में जूता नहीं है, और ये हुकूमत अरबों रुपया, अरबों डॉलर अपनी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग इस चीज को वादे नहीं कर सकते कि लंदन में, पूरे आपको इंग्लैंड के लंदन में या दूसरे शहरों में हसन नवाज ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है? अभी बिलियन ऑफ पाउंड की इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे भाइयों, क्या यूके में नवाज शरीफ ने कोई फैक्ट्री लगाई है जिससे पैसा निकल रहा? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, उनके खून पसीने की कमाई है। आप इस चीज को इंडिकेट करें, हाईलाइट करें। मेरे दोस्तों, मैं कुछ जज्बाती हो गया, आपका टाइम ज्यादा ले लिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों को समझें। एक तो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और दूसरा परवेज मुशर्रफ की रहाई करिए, उसको इंसाफ के लिए पूरी दुनिया को हमें किस चीज की जरूरत है। और आखिर में मैं पार्टी के जितने नौमुंतखब लोग हैं, वो कि वही लोग हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमने सब लोगों को इकट्ठा किया है, सब लोग इकट्ठे होकर परवेज मुशर्रफ साहब के लिए काम करें, इस पार्टी के लिए काम करें। और मैं अगर आप एक अच्छी बड़ी रैली करते हैं या जलसा करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं मैनेज करूंगा कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से आपकी उस रैली को खिताब करें। उनको जब ये तमाम होगा कि अब जो तंजीम है उसमें लड़ाई नहीं है। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद, डॉक्टर अमजद जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, इसके साथ ही आज के इस डिनर में जो 60-70 जो हमारे गेस्ट आए हुए, आप लोगों का मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जज्बात, अपने करीब मैं भी इंग्लैंड का दौरा करूंगा, और दुआ करें कि परवेज मुशर्रफ साहब को भी ECL से नाम निकलने की इजाजत मिल जाए, तो वो भी आपके दरमियान हो, अपना इलाज भी कराए और लोगों के साथ बैठ कर खाना भी खाए। और अच्छे वक्त के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब की फिक्र नहीं करें, उनकी वादा बीमार है, उसके लिए दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी मजबूत होगी। हम जमहूरी निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम कोई गलत इक़दाम का हिस्सा नहीं बनते। हमने रिकॉर्ड में लास्ट में आपको बात कहता चलूं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक और अवामी मुस्लिम लीग, इन तीनों जमातों के साथ मिलकर हमने भी ऐलान किया है कि 11 मई को जो एहतजाज है हम उसका हिस्सा होंगे, हमारे कारकुनों के साथ होंगे, क्योंकि ये भी मिलकर पाकिस्तान में तब्दीली की बात करते हैं, और हम भी तब्दीली की बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला तीसरी कुव्वत बनेगी, तीसरी कुव्वत उभरेगी। उसको लीड कौन करेगा? आपका मेरा लीडर सैयद परवेज मुशर्रफ। जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।